Yesterday we had created a DTC 003 wala, right? Amol, I will Yes, sir. send you a code that you have to run to create a database. बाकी update कैसे करना है that you can go through the video. ठीक है? हमने कल क्या देखा था? We'll take little bit overview. और ये जो हमने कल सीखा है that I will share you. So don't worry. This is what we had created yesterday's file. Create database, alter database, drop database. ठीक है? All this command we have checked yesterday. As up only run this command. This command will help you to create database. Sure. I have dropped this command in our chat window box. I have dropped a message. You can just go through. Okay. Can you share your screen? Let me check if you are good to go. Let me see. Yeah, I'm sharing my entire screen. Yeah. That. Perfect. Express you have downloaded, correct. Then click on connect. Perfect, right? Then new query. Okay. Do you have this? Okay. Exit. I don't think I have sent this. Okay. Database engine. Already you are connected to database engine. So exit it and click on new query. Okay. Right. From there. Correct. Perfect. Okay. Now here, yesterday we have seen how to create, modify, and drop a database. So I have sent you one code. Okay. Otherwise, that is not big part. So I will show you. You can stop sharing your screen. I'll show you. Sure. Are you able to see my screen? Yeah. Okay. See, this is the command we have run yesterday. Create database. It helps us to creating a database. This helps us to modify the name of database. This is the syntax. अगर कुछ भी हम create करते हैं, database create करते हैं, table create करते हैं, तो we start with create database, create index, create table. Right. है कैसे? Or here anything if you if we want to alter, then we have to give this command alter database, alter table, like alter view. तो alter means modify करना. तो alter database का नाम, modify name, और जो आपको जिससे जो आपको नाम चाहिए, whatever you want, give the name for your database. अब हमने create किया था ये वाला, इसको फिर ठीक है, I will run it again. I will show you कि how we have changed it. और उसको run command करता हूँ तो देखो this database 003 वाला will become 1. अगर मैं उसको refresh करता हूँ database को, sorry, यहाँ पे means it's a directly replace on database, right? Means it's perfect, a name replacement. Right. Okay. Direct replacement of name, right? It will modify the name. देखो 001 हुआ. Right. Again, if I want to drop it, this is the command to drop the database. See, if I refresh it now here, you won't be able to see this database. Look at the database. No. है क्या अभी वो? नहीं है. No? Okay, नहीं है. So this was what we have checked, but there was lot many things we have covered in theory. So I want you to go through our yesterday's record session. उसमें हमने बहुत सारा constant की चीजें हमने पढ़ी है. What is constant? Why do we require it? What type of constant do we use? ठीक है, तो वो ऑल सारा कवर किया, बट एक्चुअल में हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो दैट वो इन चीजें करना कि मुझे वो कंस्ट्रेंट क्या है एग्जैक्टली वो समझने थे. परफेक्ट, आपको पूरा समझ में आएगा. ठीक है, तो आप वो बहुत बड़ा सेशन है कल का, तो वो आप उसके थ्रू चले जाना. लास्ट का आई गेस आधा एक घंटा हमने कंस्टेंट पे ही डाला है. Sure.
तो फिर भी आई विल वॉक यू थ्रू कि व्हाट इज कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, सो दैट यू विल हैव एन फेयर आइडिया। हाँ। तो ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट नाम से आपको क्या पता लगता है? It's a uniqueness for कंस्ट्रेंट मींस रिस्ट्रिक्शन, yeah, राइट? उसका restriction. नाम हाँ. या तो रूल, राइट? अब Right. डेटाबेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन और रूल अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज डेटा हमें कैसे चाहिए? क्लीन। So let me open PPT, then you'll be able to understand. और कोई है कि जिसने कल अटेंड नहीं किया? Is there anyone who did not attend yesterday? No one is there, right? So I will give you overview, but डीप में कल का वीडियो देख लेना, ठीक है? Sure. कल में बहुत सारा डीप हमने ओवरव्यू दे दिया है कि कंस्ट्रेंट, व्हाट अबाउट द कंस्ट्रेंट, उसमें हमने कैंडिडेट की भी का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाई डू रिक्वायर्ड, उसमें से प्राइमरी की कौन सा होना चाहिए, दैट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड इन डीप। तो देखो, अब अगर इस डेटा में देखेंगे तो सी हियर, यहाँ पे एज में सी आया है एक्स्ट्रा, राइट? Right. तो एज में कभी 99 सी ऐसा एज होता है क्या? नहीं. नेवर। तो नाम कभी नंबर्स होता है क्या? 0 to नहीं. 0? नेवर, No. राइट? तो दिस इज नॉट गुड डेटा, इट्स नॉट क्लीन वन, राइट? सो अगर मुझे इनसाइट कुछ ढूंढना है इसमें से और ढूंढ के देना है, तो दिस डेटा विल नॉट गिव मी अ परफेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें डेटा एनालिस करने पाऊंगा, तो उसको मुझे Right. क्लीन करना पड़ेगा पहले। आई हैव टू फाइंड कि हु इज दिस पर्सन। Means it's a unstructured data to find out करेक्ट, proper way. परफेक्ट, परफेक्ट। और सेकंड, लुक एट दिस सेकंड, ओके। अब इसमें अगर देखेंगे आप, राइट, देयर आर द टू पीपल बट एज आर डिफरेंट, तो डेफिनेटली दो अलग अलग बंदे रहेंगे हाँ. इसके रिगार्डिंग, राइट? तो हाँ. इनको जो एम्प्लॉय आईडी दिया है वो एक आया है, हाँ. राइट? तो ये ऐसे ये गलत है. डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, दिस इज द Right. इनकरेक्ट। तो उसको हमें करेक्ट करने के लिए हमने प्राइमरी की का इन्फोर्स करना चाहिए। तो वो प्राइमरी कीज का भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन कल के वीडियो में आपको मिलेगा। स्टिल आई विल वॉक यू थ्रू कि वो उसको हमें प्राइमरी की हाउ इट हेल्प अस टू मेंटेन आवर डेटा यूनिक, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, दिस इज द डुप्लीकेट, ठीक है? तो प्राइमरी की वी कैन यूज टू अवॉइड डुप्लीकेट रिकॉर्ड दैट won't allow you to insert duplicate record। अगर इसमें आप नेक्स्ट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे you will be able to find कि how primary की help us to maintain uniqueness in each record। primary की should be unique। देखो, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, प्राइमरी की शुड नॉट बी नल, प्राइमरी की नल नहीं होती और Okay. अलाउ भी नहीं करेगा। इट शुड हैव अ वैल्यू पॉपुलेटेड फॉर ईच एंड एवरी रो। तो उसको ब्लैंक भी नहीं कर सकते, ना नल रख सकते, ना डुप्लीकेट रख सकते। तो प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, आपका एज अभी 38 है, तो इस ये बंदे का मार्क का तो नेक्स्ट ईयर 39 होने वाला है, 39. बट Right. परफेक्ट, बट ए प्राइमरी की विल नेवर चेंज। Change. जैसे Right. कि आपका आधार कार्ड आपको दे दिया है, कभी आपका चेंज होगा? वो नहीं नहीं. होगा कभी, राइट? आपको ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप ऐसा यूनिक चीज, आप पैन कार्ड का एग्जांपल ले सकते हो, आपके कोई का पे रजिस्ट्रेशन किया तो उसका नंबर, दोज आर द प्राइमरी की, ठीक है? दोज आर कैंडिडेट की, नॉट प्राइमरी की। बट कैसे कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की मैं चाहता हूँ कि कल का वीडियो आप देखो, उसमें आपको पता Sure. चलेगा कि उसमें से प्राइमरी की कौन सा निकलना चाहिए, ठीक है? बट नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्राइमरी की, ठीक है? और प्राइमरी की कैसे निकलना है, यू विल बी एबल टू गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन विद यस्टरडेज वीडियो, ठीक है? Sure. प्राइमरी की ये तो आपको स्टूडेंट समझ में रोल आया, नंबर जैसे हाँ, स्टूडेंट रोल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, इट्स माय प्राइमरी. राइट. करेक्ट, दोज आर यूनिक नंबर, यूनिक नंबर. राइट? दोज आर कैंडिडेट नंबर, जो यूनिक होता है उसको कैंडिडेट नंबर बोलता है। और प्राइमरी की कैंडिडेट की से हमें निकलना चाहिए जो भी आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप जो भी ढूंढेंगे, नहीं क्या? हाँ. प्राइमरी की वैसा होना चाहिए कि आपके पास होना ही चाहिए। मोस्टली कैसे, देखो, एम्प्लॉय आईडी नंबर होता ही है हर एक के पास। हाँ. समटाइम अभी ठीक है मैंडेटरी हुआ है, अभी पहले कैसे था, वोटर आईडी था,
वोटर आईडी नहीं दिया तो आधार कार्ड दिया तो भी चलेगा, आधार कार्ड नहीं दिया तो पासवर्ड अपना पासपोर्ट दिया, नंबर दिया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, राइट। तो दैट कैन नॉट बी प्राइमरी की बिकॉज आपके पास नहीं है, दैट कैन बी कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट यूनिक है, बट प्राइमरी की के लिए आपके पास नंबर ही नहीं है, तो कंपनी वाला कैसे डिसाइड करेगा कि वी विल डिक्लेयर दिस प्राइमरी की? श्योर। राइट, सो एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय का आईडी वुड बी परफेक्ट फ्रॉम दिस, एम्प्लॉय आईडी भी कैंडिडेट की जी है, दैट इज आल्सो यूनिक, बट ये एम्प्लॉय आईडी नंबर हर एक के पास रहेगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज फेयर कॉलम, नहीं क्या, किसमें क्या हो सकता है फ्यूचर का पूरा समझ में आके, दैट एक्चुअली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर ओके, B18, ये सब कुछ क्या है कि आर्किटेक्चर बना के टेबल वगैरह बना के आपको रेडीमेड मिलेगी, नहीं क्या, बट राइट। स्टिल वो यू ऑलरेडी नीड टू वैसे ही नो। करते हैं। राइट। हाँ, ऑलरेडी डीबीए टीम्स वो वैसे ही करते हैं, मतलब पूरा रेडीमेड करके हमें सिर्फ एक्सेस देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, राइट राइट राइट, तो आपको एक्सेस देते हैं, बट यस कि आपको उसमें कुछ भी अगर विजुअलाइजेशन आपको बनाना है, हाँ। if you want to create anything, so you need to know what is primary key, how data has been driven, so you have to perform the modeling, data modeling, तो सब चीजें करने के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, पता आप होनी, नहीं राइट क्रिएट सर। कर रहे हो दैट्स फाइन, बट यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यस। नेक्स्ट वो कंस्टेंट, इसके लिए हम चेक कंस्टेंट लगाएंगे, नहीं क्या, वी हैव अराउंड 6 to 7 कंस्टेंट दैट वी आर गोइंग टू इन्फोर्स टू द टेबल, तो ये अवॉइड करने के लिए चेक कंस्टेंट, देन वी हैड एक्चुअली क्रिएटेड दिस डेटाबेस, तो होप कि आपको यहाँ तक ओवरव्यू आपको समझ में आया, हाँ, डेटाबेस क्रिएट, ये आपको जैसे मैंने अभी दिखाया आपको हाउ टू दिखा। क्रिएट एन यस। डेटाबेस, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैंने ओवरव्यू आपको जल्दी दिया, बट होप यू अंडरस्टूड, और कुछ भी श्योर। रहेगा तो वो गो थ्रू दी वीडियो, श्योर। फाइन। फाइन, गुड गुड, ठीक है, तो रेस्ट ऑल प्लीज, अगर कल किसी का इशू था SSMS का, अगर आप नहीं कर पाए तो प्लीज क्रिएट दिस डेटाबेस टुडे, आज आप क्रिएट करो, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, नहीं तो आई विल ओपन न्यू क्वेरी, यहाँ पे दिस इज द डेटाबेस दैट वी आर गोइंग टू यूज, होने के बाद मुझे बताना। Done, guys, please keep this session interactive, if you don't speak now I won't able to understand what is going on with you, I need everyone यहाँ पे फोकस, अटेंडेंस अपना पूरा फोकस यहाँ पे चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, और यू डोंट हैव टू अफ्रेड फॉर एनीथिंग, कुछ भी है माइंड में डाउट है प्लीज लेट मी नो, नो क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन फॉर अस, बिकॉज आई नो यू आर ऑल आर, मेनी ऑफ यू आर बिगनर, सो मिस्टेक तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना, तो होने के बाद लेट मी नो, otherwise it will kill the time and we don't want that, we want to move ahead। हेलो। हाँ, यस हाँ सर, प्रवीण बात कर रहा यस प्रवीण, हूँ। स्क्रीन शेयर करूँ सर मैं अभी? ओके, हाँ आपका इश्यू है ना, ठीक है, शेयर हाँ। करना स्क्रीन, यस, ठीक है, कनेक्ट कनेक्ट करो, परफेक्ट, ज्यादा ही जूम हुआ है आपका स्क्रीन, लेट इट बी, डोंट ओके, हो गया ना, हाँ हो हम गया सर। ओके डेफिनेटली, गुड, ठीक है, तो दिस इज द डेटाबेस वी हैव क्रिएटेड,
प्रवीण आप भी क्रिएट करना है दिस डेटाबेस. I will drop this query ओके सर. query code in our chat box, so you can take it from there. ओके सर. ओके. Good. ठीक है, तो what is table we have seen, right? So now we are going to create an table. तो हम टेबल बनाने वाले हैं, and also going to enforce the constant, right? So let's see, let's jump into the slides or slider, and this is what. ठीक है, हमें 2 टेबल बनाने वाले हम. One is TBL person, one is TBL gender. That both we are going to create it, and we have to enforce the foreign key and primary key. ये दोनों आज हम सीखने वाले हैं कैसे बनाते हैं. कल थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया प्राइमरी की, नॉट फॉरेन की. फॉरेन की इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड IMP टॉपिक. आपको 99% चांसेस है कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, व्हाट इज प्राइमरी फॉरेन की. और प्राइमरी की इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा या आएगा, अदरवाइज बोथ कैन बी आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर, व्हाट इज प्राइमरी की एंड व्हाट इज फॉरेन की. So let's see what is primary key and foreign key, and establish primary key and foreign key constraint. Foreign key are used to enforce database integrity. यानी डेटाबेस में आपको डेटाबेस में क्या किसके लिए आपको लगाना है फॉरेन की? टू इन्फोर्स डेटाबेस इंटीग्रिटी. व्हाट इज इंटीग्रिटी? दैट वी विल सी. In layman terms, a foreign key in one table point to a primary key in another table. Foreign key constraint prevent when invalid data from being inserted. ठीक है, अब ये एग्जांपल हम देखेंगे, पहले समझेंगे. ठीक है, पहले हमने फर्स्ट डे में हमने देखा था बैंक का एग्जांपल, राइट, कि इंटीग्रिटी कैसे लॉस्ट होती है और उसको हमें इंटैक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू बिल्ड फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप. तो अभी हम सेम एग्जांपल लेंगे पर्सन टेबल और TBL जेंडर टेबल का. तो लेट्स से TBL जनरल टेबल है ना, जेंडर टेबल, दैट वी विल कंसीडर एट मेन बेस टेबल. तो बेस टेबल में, इस टेबल में जो भी एंट्रीज है दैट कैन बी इंसर्टेड हियर. दैट आई विल शो यू इन एक्सेल. आई विल ओपन एन एक्सेल. सेम एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था इसका बैंक का. अगर बैंक में आपका अकाउंट ओपन नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, तो यू कैन नॉट परफॉर्म द ट्रांजैक्शन. वैसे ही इसमें यहाँ पे एंट्री नहीं है, जेंडर मेल फीमेल या अननोन, इस तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इस टेबल को पता नहीं लगेगा कि ये जेंडर कौन सा है. तो इट विल नॉट अलाउ यू टू गिव एनी इनपुट ट्रांजैक्शन. लेट मी शो यू हियर फर्स्ट. ओके, यहाँ पे क्या है? जेंडर, राइट. जेंडर में TBL जेंडर वाला टेबल है. ID, नेक्स्ट जेंडर. आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या हो रहा है. यू हैव टू जस्ट सी. अब यहाँ पे क्या है? मेल फीमेल एंड अननोन, और 1 2 3, राइट. 1 के लिए मेल है, 2 के लिए मेल फीमेल, और थर्ड unknown, right? This is base table. Consider this is the base table. ये base table है, ठीक है. और अभी जेंडर में तीनों लोग ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. अगर इसमें फोर्थ है तो उसका जेंडर फोर्थ तो हमें पता ही नहीं है. तो अगर यहाँ पे ID फोर्थ वाला रहेगा तो ही आप टेबल में डाल सकते हो. तो सेकंड टेबल कौन सा है? ID, नेम, ईमेल एंड जेंडर ID. ID इज नथिंग बट इसका पर्सन ID, नॉट जेंडर ID. इसमें ID मीन्स ये जेंडर ID है. आई विल शो यू. जेंडर ID is ID name, then क्या है? email, then gender ID. ठीक है, this is the table. ठीक है,
ये टेबल है। अब इसमें प्राइमरी की क्या रहेगी, लेट्स से इसको हम प्राइमरी की कंसिडर कर, इसको हम आईडी प्राइमरी इज की अ बनाते प्राइमरी हैं, की। आईडी इज अ प्राइमरी की। अब यस। आपका ये डेटा फिट है एक, ओके मुझे पता नहीं कि व्हाट योर डिटेल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ईमेल आईडी, व्हाट इज योर जेंडर आईडी, बट मुझे इतना ही पता है कि मुझे ट्रैक करना है मेल फीमेल से, राइट आप मेल हो तो भी आप डेटा एंट्री कर पाओगे, बिकॉज हियर आई हैव इन्फोर्स फॉरेन की। ठीक है, तो डेटा बेस इंटैक्ट रखने के लिए, नहीं डेटाबेस इंटीग्रिटी, आई डोंट वांट टू लॉस डेटाबेस इंटीग्रिटी, आई वांट डेटा नीट क्लीन एंड वॉट एवर इज दैट बिजनेस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेल है, सपोज यहाँ पे लेट्स टेक वन वाला यहाँ पे एंट्री कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे 1 है। तो नेम किसने किया, एक जेड XYZ एक पर्सन ले लेते, तो उसका ईमेल आईडी भी j@j.com ये लिया, उसका जेंडर आईडी, सॉरी यहाँ पे नहीं, फॉरेन की यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द आईडी फॉर पर्सन, नॉट ये जेंडर आईडी ना, ये जेंडर टेबल का जेंडर आईडी है और इसका ये जेंडर आईडी है, यानी 1 यानी मेल। यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो इसका मतलब क्या है, किसको लुकअप करेगा, इस टेबल को लुकअप करके 1 के लिए क्या है मेल, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दैट विल बी डिसाइडेड मेल यहाँ पे है। कुछ कंफ्यूजन है नो सर। गाइस? नो ना। देखो अब सेकंड, यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड कितने चाहिए उतने लोग एंट्री कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, जैसे वहां पे अकाउंट नंबर पे हमने देखा था, वहां पे वैसे जेंडर वाला मुझे कंफर्म होना चाहिए कि क्या जेंडर है। तो लेट्स से यहाँ पे हम सेकंड ट्रांजैक्शन डालेंगे मैरी का, मैरी वाला, उसका ईमेल आईडी m@m, और यहाँ पे लेट्स से अभी मैरी ने रिकॉर्ड पता ही नहीं है, राइट पता नहीं है, तो यहाँ पे लेट्स सी अननोन 3, बट 3 इधर है, देयर इज अ 3, देयर इज एन 3 in this table, so it will accept, 3 will be accepted। but अगर 4th person रॉब वाला आया एट आर, उसने डिटेल डाली, अगर यहाँ पे 4 वो जेंडर आईडी डालता है तो लेगा क्या एंट्री, व्हाट डू यू थिंक गाइस? नो, ये क्योंकि नो, रिकॉर्डेड नहीं है। बिकॉज द 4 यहाँ पे है ही नहीं, वो जेंडर पता ही नहीं। अगर मुझे बाद में, अगर मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, नहीं क्या दोनों ज्वाइन करना है और मुझे देखना है कि अभी मुझे नंबर नहीं चाहिए, फीमेल लेके आओ, तो मैं लाऊंगा कैसे? तो डेटा इंसर्ट करने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी एन एरर, दैट शुड थ्रो एन एरर। अगर ऐसे हुआ तो व्हाट विल हैपन, डेटाबेस इंटीग्रिटी will loss and data is not intact now if you are able to insert this record. Then we have to enforce the foreign key. So let's see same example using SSMS। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम। अभी मैं इसलिए 2 एग्जांपल देता हूँ, पहले दिन बैंक का दिखाया और इस दिन इसका दिखाया, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। अगर उस दिन का रिकॉर्ड अगर कोई कंफ्यूजन में है तो लेट मी नो नाउ, उस दिन का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, बट अमोल आपको सर, समझना है। हाँ बोलो। Amol sir, we have some different ID like customers ID and stockbrokers ID. So ओके the foreign key have uh, means ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये किससे इंटीग्रेट कर रही है, मतलब जैसे आपने अभी बताया कि आपका जैसे जेंडर एग्जांपल आईडी है, से। देखो आपका सपोज डेटाबेस है, ठीक है, यू आर हाँ। वर्किंग ऑन एनी डेटाबेस एंड रिक्वायरमेंट यू रिसीव्ड, बीआरडी डॉक्यूमेंट यू रिसीव्ड, राइट, बीआरडी में सब कुछ लिखा रहता है कि व्हाट इज कॉलम फॉर व्हाट, सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ओके। हाँ, तो वहां से आपको पता लगता है मोस्टली, ठीक है, वहां पे आपको सब डिटेल मिल जाती है बीआरडी डॉक्यूमेंट, दैट वी विल टेक केयर ऑफ व्हाइल वी आर टेकिंग अपना उसका पार्ट प्रोजेक्ट वाला, ठीक है, दैट वी विल गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन।
So hold on this question now. So just now understand this concept, primary key and foreign key. तो कैसे देखना है, कहाँ पे देखना है, gradually you will be able to understand. I think this question will be little early to answer. ठीक है, ठीक है. So let's create a table. Any other doubt or any other question? No, sir. No. So shall we proceed ahead? Sure, sir. Yes. Okay. So let's go ahead and create two table. अब पहले हम create कर लेते हैं. देखो टेबल के लिए create करने के लिए ना दो तरीके हैं. एक यहाँ से भी आप टेबल क्रिएट करते हैं, बट आई डोंट वांट यू टू क्रिएट फ्रॉम हियर. टेबल पे राइट क्लिक करो, न्यू करो, यहाँ पे फिर टेबल क्रिएट करो. डोंट डू दिस बिकॉज है ना, आपको आदत रखना कुछ भी है कोडिंग भी करना है SQL क्वेरी में. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कॉलम का नाम, डेटा टाइप आपको नल अलाउ करना है. फिर यहाँ पे भी बहुत सारा प्राइमरी की वगैरह डिक्लेयर करना है, इंडेक्स देना है, रिलेशनशिप बनाना है, चेक कंस्टेंट देना है. दिस all option you will be having here, but I want you to use method from this query editor. So first we will create table of ये TBL gender वाला, प्राइमरी की वाला. तो उसको नाम हम देंगे TBL gender. तो टेबल क्रिएट करने के लिए now what I have to write, can anyone guess and tell me? Select star from. It's a syntax. That नहीं, select वाला तो अलग है, that is DML command. Again I will see that या later. क्रिएट टेबल. अब क्रिएट करना है यहाँ पे, जैसे क्रिएट डेटाबेस. Create table. परफेक्ट. देखो गेस करना है, अगर कोई भी क्रिएट करना है तो आपको यू हैव टू राइट क्रिएट दिस कीवर्ड. क्रिएट अभी पहले डेटाबेस किया था, अभी टेबल करना है, तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ टेबल. तो क्रिएट टेबल, अभी टेबल का नाम क्या देना है हमें, which table we are going to create? TBL gender. TBL gender. ठीक है, देखो ये तो हमने क्रिएट किया, बट हमने दूसरा जो 2 दिन से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या एक्सप्लेन करें टेबल के रिलेटेड, स्ट्रक्चर, राइट. हाउ मेनी टाइम वी हैव given the name of structure? Many times. So that structure is very important in table. Agar sir, 1 minute. Like you have select the database, master database, right? So over here you have to select this particular database, right? Perfect. Who had asked this question? Yeah, Deepak. Deepak, right. Yesterday we already explained कि यहाँ पे हमें कोई भी, this is the option that this table is going to create. So you have to make sure to select from here. यहाँ से select करो तभी जाके. अभी this was not our perfect database. ठीक है, इसमें am I able to see which we have created now? No, yeah, right? 03 I think you have created 02. 002 है. Okay. 002, but okay, 03 I think 03 you have created, I think yesterday. Deleted ना? I will create it again. देखो, now I have created it and now it should be reflect under this drop down. It should be there. Click here if you are not able to view. अब ये 003 आप यहाँ से भी select कर सकते हो. Otherwise है ना, यहाँ पे आप simply you can write use DTC, ये वाला है, right? और गो, दोनों ऑप्शन. ये भी आपने कमांड रन किया तो भी उधर ही जाएंगे आप, या तो यहाँ से सिलेक्ट किया तो भी वहां पे ही जाएंगे. तो एनी ऑफ वन आई एम फाइन, बट मेक श्योर कि आप ये सिलेक्ट करना बिफोर रन दी एनी कमांड. ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन दीपक. ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. तो स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा था. स्ट्रक्चर, how table, what is the definition of table, how table is made of column and rows and column. Rows and columns. तो यहाँ पे मुझे देखो rows तो entries है, right? That will be populated after we insert any record. Then in structure, what are the element we have to involve?
यस, कैन यू टेल मी? अभी ये देखो, रिकॉर्ड तो हम बाद में डालने वाले, टेबल क्रिएट होने के बाद, बट टेबल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कॉलम्स, कॉलम होना चाहिए कि नहीं? अगर यहाँ पे मैं ऐसे टेबल देता हूँ आपको, नहीं क्या, विदाउट कॉलम के, और आपको बोलता हूँ कि भरो ये टेबल, आप क्या बोलेंगे? किसने नहीं। बनाया, कौन है ये, राइट? अगर ये आप कॉलम देंगे तो बोलेंगे हाँ दिस इज रिलेटेड टू आईडी, यहाँ पे नंबर जाना चाहिए, यहाँ पे मेरा नाम जाना चाहिए, है ना? यस सर। वैसे ही लॉजिक टेबल के लिए आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए उसका? कॉलम का। कॉलम्स। लेट्स से अभी पहले कॉलम क्या था उसमें? वी विल सी आईडी, आईडी, राइट? तो विल फर्स्ट विल टाइप हियर आईडी, बट हाँ स्ट्रक्चर को लिखने के पहले ब्रैकेट के अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन द ब्रैकेट, ठीक है? तो ब्रैकेट का सैंडविच बनाओ, इसके अंदर आप स्ट्रक्चर कुछ भी लिखो, जरूरी नहीं है इसके अंदर, ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर भी, और यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट मेक योर कोड क्लीन एंड नीट सो दैट अदर डेवलपर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। और नाम भी आपको अच्छे से देना। अभी मैंने देखो टीबीएल जेंडर, पता लगता है कि यार टेबल है ये, आप नेम भी अच्छा देना, अच्छे अच्छे एग्जांपल सेट करने की कोशिश करना फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम टुडे, अभी से आपको आदत लगानी, ठीक है? तो लेट्स सी, मैंने तो यहाँ पे अभी आईडी तो लिखा, अभी सेकंड पार्ट क्या है टेबल का? यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं, दैट प्रॉब्लम है, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर आया है, राइट? तो ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आने देना है, तो आई हैव टू डिक्लेयर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या क्या, डेटा टाइप के व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा? लेट मी चेक। इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। guys, let me see where I have kept that file. If I couldn't find it today na, I will definitely send you later, but अगर आज मिला तो all people, you all be able to see it. कहाँ पे तो डॉक्यूमेंट रखता है यार, wait, okay, I think I went in. let me see, कहाँ पे गया? ठीक है, फिर भी give me 1 minute. Data type, okay, got it. Table column, that is different. Table column and modifying, ठीक है? I will send the file on your WhatsApp. आप सब आपके WhatsApp देख लेना और आपको डाउनलोड करके रखना है, और you have to go through the document of Word. Okay, let me save it. Yes guys, I have dropped a message on WhatsApp chat. So let me open from WhatsApp chat. अभी पूरा जो भी मैंने अभी फाइल भेजा है, प्लीज सेव इट. Done? Yes, sir. Sorry, excuse me. Let me share my screen again.
Okay, this is the document and now I have opened it. Where it went? Open my work. I think it's not open it. Okay, it's open. देखो, these are the data types. These are the data types. ये आपको सबको ओके ये भी मैंने भेजा आपको, ठीक है, नो वरीज. ये भी डेटा, दिस इज फॉर आवर असाइनमेंट. ठीक है, ये टेबल भी बना के रखना. दिस आर इम्पोर्टेंट फॉर असाइनमेंट इन फ्यूचर. ठीक है, आज भी मैं असाइनमेंट भेज दूंगा बट दिस वोंट बी रिलेटेड टू दिस टेबल. आज अलग आपको टेबल और रिलेशनशिप का मैं अलग से आपको भेज देता हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी द डेटा टाइप. अब डेटा टाइप आपका यहाँ पे कैर है. कैर मीन्स व्हाट? एक्सप्लेनेशन हियर आई हैव गिवन इन डिस्क्रिप्शन. फिक्स लेंथ कैरेक्टर और मैक्सिमम कैरेक्टर ऑफ 8. यहाँ पे एन वार कैर है. यहाँ पे फिक्स लेंथ ऑफ यूनिकोड. अब यहाँ पे क्या है कि हम मोस्टली एन कैर एन वार कैर ये वाला चीजें यूज करते हैं. और कैर जो है इसमें एक देखो ये फिक्स कैरेक्टर, यानी सपोज हमें पता है हमारा एक कॉलम में लेट्स सी कि पिन कोड है. पिन कोड में 8 डिजिट का रहता है, राइट? तो दैट टाइम आई कैन यूज हियर कैर वाला फंक्शन. कैर वाला फंक्शन. बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगा गाइस कि अगर आपको पता नहीं है कि कैरेक्टर कितने डिजिट का है. जैसे कि नाम, मेरा नाम अमोल है, किसी का नाम दीपक है, राइट? कोई भाग्यश्री है. तो आपका अलग अलग नाम का तो अलग अलग ये है नंबर्स है, अलग अलग बाइट का नंबर्स है. अमोल ने 4 डिजिट का है, भाग्यश्री उससे ज्यादा है, दीपक और नहीं क्या एक मीडियम साइज है. तो अगर ऐसा रहा आपको पता नहीं कि लेंथ कितना है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज varchar. That time we have to use varchar. तो varchar में क्या होता है? I will show you here again in Excel. Let's say मेरा नाम अमोल है और एक दीपक, ये दोनों का एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं कैर ले लेता हूँ डेटा टाइप, कैर 4, कैर 4 ले लेता हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक कैर में कैसे होता है कि एक डेटा एक 1 KB ना एक्स्ट्रा चला जाएगा. यहाँ पे 1, ये 4 है तो एक एक्स्ट्रा लेगा और 4 लेगा. अभी ये क्यों? देखो अभी ये मेमोरी खाता है. अभी 4 बाइट यानी कितना? AMOL 4 बाइट. अभी ये दीपक का है, यहाँ पे लेगा ही नहीं. अब यहाँ पे 4 बाइट नहीं, यहाँ पे 5 बाइट लेगा. बिकॉज यहाँ नहीं एब्सोल्युटली दिस इज नॉट विद दिस एग्जांपल. यहाँ पे 4 ही बाइट लेगा. अमोल के लिए 4 बाइट प्लेस ले लेगा. अभी दीपक यहाँ पे, राइट? बट दीपक का कितना कैरेक्टर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 है, राइट? 6 कैरेक्टर. करेक्ट. तो ये 4 कैरेक्टर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो इसमें दीपक का पूरा नहीं बैठेगा, फिर इतने 4 ही आएंगे, 4 ही आएंगे, तो एक नहीं बैठेगा. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा बिगड़ जाएगा. अगर यहाँ पे 6 है करके अगर यहाँ पे 6 हम डालेंगे, 6 अगर डालेंगे तो यहाँ पे मेरा इस डेटाबेस में दोनों को करेंगे, ये दोनों बैठेगा, अमोल भी आएगा और दीपक भी आएगा. बट क्या होगा? ये अमोल है ना, 4 ही बाइट बैठना चाहिए था, बट उसने स्पेस ले लिया 6 बाइट. अब दीपक के लिए ठीक है, बट ऐसे नाम ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? तो हम मैक्सिमम ये तो ज्यादा ऐसे ही मेमोरी खाली नहीं छोड़ सकते. हमें क्या चाहिए कि वेरिएबल मेमोरी चाहिए. जितना नाम है उतना ही ले लो ऑटोमेटिक. अगर अमोल है 4 बाइट है, 4 ही ले लो. अगर दीपक है 6 है, 6 ही ले लो. वैसा एक डेटा टाइप है हमारे पास, उसके लिए हम varchar, अभी varchar से n varchar हम यूज कर लेते हैं. बिकॉज अगेन दिस इज यूनिकोड, नहीं क्या? इसमें और भी मेमोरी कम ली जाती है. यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए तो यहाँ पे डबल लिया जाता है, और इसलिए मैक्सिमम हम n varchar ही यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर लेट्स टेक एन सिमिलर एग्जांपल, यहाँ पे n varchar हमने लिया, n varchar, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ठीक है 50 के बीच में कोई भी रहने दो, नहीं क्या?
दैट हैज टू बी, नाम अगर 50 कैरेक्टर से तो ज्यादा नहीं रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो वो भी दिया तो भी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे 4 कैरेक्टर है मेरे, लेट्स से यहाँ पे 4 बाइट है, तो 4 बाइट का ही लेगा। यहाँ पे कितना है दीपक, राइट, दीपक का कितना है 6 है, तो 6 बाइट भी लेगा। तो फिर आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर यहाँ पे कैर फिर क्यों ले लिया, अगर यहाँ पे एनवायर कैर अगर डायनामिक है, दैट कैन बी वेरिएबल, इसको वेरिएबल ही बोलते हैं, वेर कैर यानी वेरिएबल, तो वैसे वो चेंज होता रहता है। तो देन व्हाट इज यूज। अब गाइज जिसमें ना एक्स्ट्रा के भी कुछ भी नहीं, अगर हमें पता है ना अभी पिन कोड हमें पता है 8 डिजिट का है, राइट, तो 8 ही डिजिट का रहेगा, तो उसमें हम कैरी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा 2 बाइट एक्स्ट्रा ले लेता है। अगर मैंने 50 भी लिया, मेरा नाम 4 बाइट का भी रहेगा ना, तो मेमोरी विल बी यूटिलाइज 6, यहाँ पे मेमोरी विल बी यूटिलाइज 6। आपको समझ में आ रहा है ना? यस यस। हाँ, और रिमेनिंग बाइट्स का क्या होगा सर? मतलब इसमें अगर अमूल में अगर 4 बाइट यूज कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें 2 ऐड होगा ऑटोमेटिक। ये एनवायरकर का जो डेटा टाइप है ना, उसमें एक्स्ट्रा ले लेता है, बिकॉज उसमें कैसे कि आपको फिजिबिलिटी दी है, तो वो भी थोड़ा स्पेस 2 KB का ले लेता है, 2 बाइट का, नॉट सॉरी, ठीक है, वो थोड़ा ये ले ही लेता है एक्स्ट्रा। फिर बाय डिफॉल्ट इज टेकिंग, ओके गॉट इट, राइट, बाय डिफॉल्ट इट्स 2। अगर आप एम्प्टी भी रखेंगे नहीं क्या, तो भी 2 बाइट चला जाएगा उसमें, ओके तो ओके नहीं क्या, और इसमें एम्प्टी रखो कुछ भी रखो 4 जाएगा ही जाएगा। okay. So I think so why you are using this n varchar actually? So I think we can use this char, right, because it is fixed. ओके ठीक है, आपका आप ये क्वेश्चन का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी नाम है ना ज्यादा ही बड़ा है, किसका नाम है, भाग्यश्री का लेते हैं, ठीक है। कितना हुआ ये नाम, सॉरी ये एक एक्स्ट्रा ही हुआ, 10 let's examine 10, देख लेते हैं, 10 है, राइट। तो हमें इधर डेटा टाइप अगर हमें यहाँ पे कैर वाला बोल रहे, कैर वाला डिक्लेयर करो। नहीं कैर में वेर कैर ले लिया हमने, राइट, वेर कैर है ना ऊपर वाला, अरे ऊपर वाला क्या रहे, अगर वैर का लेगा तो अब सही है, यही लेना चाहिए, ओके ओके, हाँ यही लेना चाहिए, बिकॉज इसमें अगर आप 10 लेंगे तो हर अमोल को भी 10 GB, यानी वो तो ज्यादा मेमोरी खा रहा है। अगर देखो अभी डेटाबेस में ऐसा है ना कि वी हैव टू पे टू द डेटाबेस, जो भी उसका बिजनेस होल्डर है। अभी जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपना एसक्यूएल सर्वर का हम यूज कर रहे हो, तो वी हैव टू पे देम, तो वहाँ पे मेमोरी भी हमें ठीक से यूज करनी है। अगर आप 1 GB का डेटा होता है, 1 GB का डेटा होता है, और एक चीजें सब आप मेंटेन करते हैं, आप यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन, डेटा टीम इज सेपरेट फॉर देम, बट यू नीड टू नो। नहीं क्या, अभी यहाँ पे टेबल में हम डिक्लेयर करने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम ठीक से मैनेज करते हो ना, तो 1 GB में आपको करीबन मिलियन तो नहीं, लेकिन वहां तक तो डेटा आप आराम से बिठा सकते हो। अगर ये आप मैनेज नहीं करोगे तो फिर आपको इतना डेटा नहीं बैठेगा। तो ये डेटा मैनेजमेंट, हाँ बोलो। यहाँ पे 3 चीजें हैं, हाँ यस बोलो। Actually, why we need to define the 50 or that type after the NB character? ओके आपको यानी यहाँ पे 50 यानी आपका नाम कितना लंबा जा सकता है, दैट कैरेक्टर मैक्सिमम कितने तक देना है, बिकॉज़ आई हैव टू सी it is not taking more than that is required, so why you need? देखो आपका नाम कितने डिजिट का हो सकता, कितना कैरेक्टर का हो सकता है, ये दिस विल डिफाइन कैरेक्टर ऑफ योर नेम, कितने कैरेक्टर से। अभी यहाँ पे दीपक तो कितने 5 ही है, मैक्सिमम होके दीपक के कितना नाम बड़ा हो सकता है 50। अगर नहीं देंगे यहाँ पे, अगर आप 2 ही देंगे तो DE उतना ही आएगा, इसलिए दिस इज मैंडेटरी। उसका लेंथ आपको डिसाइड करने का, दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ योर नेम, तो दैट हैज टू बी डिफाइंड। अमूल से यहाँ पे 3 आई थिंक 3 बेसिकली डेटा टाइप्स आपने एक्सप्लेन किया, एक तो कैर, एक वेर कैर, एक एन वेर कैर, ओके। सो कैर आई अंडरस्टैंड, एन वेर कैर एंड वेर कैर में क्या डिफरेंस है, दैट इज आई एम आस्किंग। किसमें वेर कैर और एन वेर कैर।
ओके तो वो तो मैंने बता दिया ना कि बिकॉज इट टेक्स अगेन डबल बाइट, सो हम ये अपना हम ये नहीं यूज करते नहीं ठीक है, गॉट इट। यूनिकोड है, ठीक है। अभी हम मैक्सिमम इसमें क्या यूज करने वाले हैं पता है क्या? ओके देखो ये कैर भी इट्स नॉट देयर। ये टेक्स्ट का अगर ज्यादा लंबा आपका ये है तो यू कैन गो विथ टेक्स्ट, आप इसको पढ़ लेना, बट मैक्सिमम वी आर गोइंग टू यूज एनवार कैर, फिर यहाँ पे और इंटीजर INT, ये डेसिमल वगैरह है, डेसिमल प्लेसेस है, स्मॉल ये मनी के लिए ये यूज करते हैं, तो मनी का कुछ अब, लेकिन अगर कुछ फाइनेंशियल का है तो दे यूज दिस डेटाबेस, नहीं का डेटा टाइप फ्लोटिंग, अगर आपको पॉइंट में कुछ करना है तो देखा दिस, अगर डेट है तो डेट वाला एक वी आर गोइंग टू यूज, और रेस्ट ऑल टाइम डेट, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ये सब यूज करने वाले, ये सब दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट। ये फ्लोटिंग भी दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट वी आर नॉट यूजिंग मोस्टली इन आवर इसमें क्लास में। तो आप एक बार पढ़ लो, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन है, बाकी नहीं क्या, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आई हैव एक्सप्लेन इट, बाकी एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कितना बाइट लेता है यहाँ पे पढ़ के ही आपको पता लगेगा, ठीक है। Most of the time we are using n varchar, right? And n varchar, definitely right. Okay, because it is feasible. Correct. Okay. Yeah. अमोल सर, n varchar ये 50 बाइट फिक्स है क्या? मतलब यही मैक्सिमम 50 बाइट्स है? मैक्सिमम आपको ये भी ले सकते हो, नो इश्यूज, इसमें आपको जितना चाहिए वो ले सकते हो, बट नाम कितना हो सकता है आपको जितना लगेगा वो डिफाइन करो। अभी नाम बड़ा नहीं होता है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट डालना है तो आप इसमें ही अगर डालना चाहते हो एनवायर कैर में ही, तो एनवायर कैर करके उतना आप बढ़ा दो। इसमें अगर 500 का भी करना है, आपको 500 बिठाना है तो 500 कर दो। ओके। बट कैसा कि आप यू आर बिजनेस ओनर और आप नहीं चाहते हो कि अननेसेसरली डेटा कोई भी किसी भी भरो, तो उसको एक आपको कंट्रोल लेना है कि ना आप यू कैन नॉट फिल द नेम। अगर आपका ज्यादा नहीं होता, यू आर वेल अवेयर अबाउट कि नाम मैक्सिमम नेम किसका भी हो 50 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, सपोज एक ये फॉर्म है, फॉर्म पे ऐसे ही कोई एक बटन प्रेस करते जा रहा है, वही सबमिट करेगा, तो 50 के ऊपर गया तो आएगा ना वो डेटा आपका ही चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कंट्रोलिंग ऑन आवर लिमिट ऑन आवर डेटा, ठीक। सो लेट्स नाउ क्रिएट कि इसमें टेबल, दोज आर द बेसिक थिंग्स, तो यू हैव टू अवेयर ऑफ कि ये क्या है, ठीक है। तो आईडी में हमें अभी देखो, आईडी में क्या करना चाहिए, हमें इंटीजर है, राइट। व्हाट इज आईडी? इंटीजर है तो डेटा टाइप कौन सा लेना चाहिए यहाँ पे? इंटीजर, राइट। अब ये मेरा एक कॉलम हो गया आईडी में, इसमें इंटीजर ही डाल पाऊंगा, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं डाल सकते। कॉमा तभी हम यूज करते हैं अगर हमें दूसरा कॉलम डिफाइन करना है, सेकंड कॉलम। अब वी हैव टू डिक्लेयर आवर सेकंड कॉलम। व्हाट इज सेकंड कॉलम?